ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજન નીરડમની લાગી. દાદા ભજન નીરડમને લાગે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું વકારો. જીવન મારું બન્યું વકારો. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત મારે પાવું. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Okay, quickly. Now Kalamo. Okay, दो आदमी है तो 1, 2, 3, 4. Okay, Monica. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદ્વાદ વાણી, સ્યાદ્વાદ વર્તન અને સ્યાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 2. Chinay. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ
પરમાન ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ન દુબે એવી શાગાદ વાણી, શાગાદ વર્તન અને શાગાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, number 3, Tirth. આજે સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Navnidhi, number 4. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Tirth, number 5. આજે સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેવધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંત્રની ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંત્રની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવા પરમ શક્તિ આપો. Vinay, number 6. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન કર્યા જાય ન કરવાયા જાય કે કર્તા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Tirth, number 7. આજે સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પર અસ્માલુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Number 8, Navnidhi. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Number 9, Chinay. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidana, Dada. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો બોલો. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ આયર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ વજ્રાયાણમ નમો લોય સવસાહનમ એસો પંચન મુક્કારો સૌવપાવપણાસનમ મંગલાણં ચ સૌવેસિમ પડમં હવૈ મંગલમ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidana. Okay, Chinay. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी हालत मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और दूसरी ओर मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन कार्य करो और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं.
जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का माटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। नवनीत जी। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शनों पर के आवरण टूट जाएं और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है हैं कच्चे, सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे। करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी हिंदी। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, नवनिधि अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, नवनिधि रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हैं, नवनिधि टेम्पररी है। गुजराती चिनाई। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी सैयदा थोड़ा होमवर्क देखेंगे। जी। तो आज सत्साधन में कितना क्या पॉजिटिव था और गुरु जी को यस नो कैसे। ओके चिनाई। जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रसादन 10 आउट ऑफ 25 है। आज में मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मैं कल थोड़ा लेट सोई थी, और आज मैंने गुरु मम्मी को 4 बार यस कहा था और 1 बार नो अंदर से हो गया। जब मम्मी ने मुझे कचरा काटने के लिए कहा तो मेरे अंदर एकदम से नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा आया, बट मैंने बाहर हाँ ही कहा था, बट मम्मी समझ गए तो उन्होंने खुद ही वो काम कर दिया। और गुरु पापा के साथ आज मैं 3 बार हाँ की थी और उन्हें नो नहीं कहा था। छोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैं सत्साधन नहीं किए थे और मैंने आज किसी को भी नो नहीं बोला था। तो आपने खाना खाया था? हाँ। तो सत्साधन क्यों नहीं किया? जब सत्साधन नहीं करते तो खाने का बंद कर देने का, तो तुरंत हो जाएगा। और आप 3 घंटा एक्स्ट्रा स्टडीज करते, क्या किया आपने 3 घंटा? तमिल। कौन सा सब्जेक्ट? तमिल। 3 कलाक 3 घंटा तमिल। हाँ, तो अभी एक्सपर्ट बन गया तमिल। खुशी, आपने तो रिपोर्ट भी नहीं भेजा। इंडिपेंडेंट खुशी हो गई तो रिपोर्ट भी नहीं आता है, क्या हो गया है? नहीं, वो पापा ने एक काम बता दिया तो फिर सत्संग का टाइम हो गया इसलिए नहीं भेजी। पापा पे करने का तो टाइम नहीं मिलता है। ओके बोलो, आपका रिपोर्ट बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने 23 आउट ऑफ 25 किया था। मैंने आज नमस्कार विधि और दादा नासिम जी का नहीं किया।
और मैंने गुरु मम्मी को 2 टाइम्स हाँ बोला था और ना एक बार बोल दिया था। गुरु पापा को 1 टाइम हाँ बोला था। क्यों मम्मी पापा को ना क्यों बोला था? मम्मी को ही बोला था। मम्मी ने कहा मैं करती हूँ पापा का काम, तो मैंने कहा नहीं मैं कर दूंगी। अजय सच्चिदानंद आज मैंने 6 में से 5 ही सत्संग किए थे। नमस्कार विधि और दादा भगवान के देना कार्य नहीं किए थे। और आज मैंने पापा को और मम्मी को मैंने आज 6 बार हाँ कहा था और 2 बार ना कहा। एक भी बार ना नहीं कहा था। और पापा को मैंने आज एक भी बार हाँ भी नहीं कहा था और ना भी नहीं कहा। और जबकि पापा यहाँ नहीं थे इसलिए। मम्मी को क्यों ना बोला था? नहीं कहा था, मैं तो वो भूल से बोल गया। हाँ नहीं कहा था ना। ओके नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरे सत्साधन कंप्लीट हुए थे और मैंने सबको यस कहा था। एक ही स्टार है आज अभी तक। ओके दक्ष। हाँ आज मैंने सत्साधन किए थे। बस मैंने दादा भगवान की असीम जय का नहीं करी थी और मैंने मेरी गुरु मम्मी को हाँ बोला था। ओके आप नसीम जय किया आज? अभी करूंगा किसके साथ करेंगे आप? मम्मी के साथ। ओके वेरी गुड। देव। आज मेरे सारे सत्साधन हुए थे और आज मैंने किसी को नो नहीं बोला था, लेकिन थोड़ा ऐसा व्यवहार कर लिया था कि मतलब नो बोल दूं पापा के साथ। पापा के साथ ना बोला था? नहीं मतलब ऐसा कर दिया था। पहले उन्होंने कहा कि अभी मेरे साथ चल और फिर तब मेरा उनके साथ काम करवाना था, तो उन्होंने कहा कि तू काम मत करवा, तू अपना पढ़ाई का ले ले। तो पहले मैंने ना कहा और फिर अपने खुद से लेके फिर उनके साथ चला गया। ओके वेरी गुड। अव्यय कितना दिन से आप किधर था? वो एग्जाम आ रही थी तो एग्जाम की तैयारी में। एग्जाम हो गई? नहीं अभी 2 एग्जाम ही हुई। हाँ एग्जाम हो गई? अभी 2 एग्जाम ही हुई है। अभी आप कौन सा स्टैंडर्ड में है? मेरा है ना मैथ्स हो रहा है। आप कौन सा स्टैंडर्ड में है? मैं 6 में से ज्यादा एग्जाम आती है तो सत्संग नहीं करो। वो क्या होता है? चल बातें करो बच्चे लोग को। अभी ये कितना घंटा पढ़ाई करते थे? लगभग 4-5 घंटे। और बाकी का समय? बाकी का समय दूसरे सब्जेक्ट में लेता था। हाँ तो सब मिला के कितने घंटे पढ़ाई करते थे, वही तो पूछ रहा हूँ। सब मिला के 6 घंटे। ठीक। फिर मैं थोड़ी देर खेलने जाता था। हाँ तो खेलने जाते थे वो अच्छी बात है, गलत नहीं है, पर वो चेंज ओवर चाहिए ना वो आपको। तो सत्संग में 10 मिनट आ जाते तो वो चेंज ओवर मिलता अच्छे ढंग से। आप और रिचार्ज एक भूल गया, कितना टीवी देखते हैं एवरीडे? और टीवी 1.5 आवर। अच्छा एग्जाम है तो भी देखा? हाँ हाँ कि ना? हाँ हाँ तो एग्जाम है तो टीवी देखने का यदि आपको समय मिलता है तो फिर सत्संग तो टीवी से ज्यादा फायदे कारक है। ज्यादा आपको आनंद भी देगा, एनर्जी भी देगा, ऊपर भी ले जाएगा, एग्जाम में भी मदद करेगा। तो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा चुनना चाहिए? चलो ठीक है, आपने 6 घंटा नहीं 8 घंटा भी पढ़ाई कर लिया, बाकी के घंटे 8 घंटा सो लिया, 16 घंटा, 1 घंटा खाने का, 17 घंटा, तो ये
5-6 घंटे बच गए अभी तो टाइम टेबल में। तो उसमें से आधा घंटा मुंह दिखाते, सबको दर्शन देते हम सबको तो चलो अभी सोचना। हाँ, अक्षय भाई से मैथमेटिक्स और टाइम टेबल ठीक ढंग से समझ लेना, ठीक है ना। खेलने की ना नहीं है, सब कुछ करो, मगर अपने फायदे में क्या है उसका लिस्ट तो होना चाहिए ना अपने पास। हाँ, नहीं तो सब मन समय चुरा लेगा और चीजों में, और समय तो चला जाएगा। जो समय का श्रेष्ठ उपयोग करता है वही मनुष्य जीवन में सफल और आगे बढ़ता है। और आपको तो दोनों में आगे बढ़ना है ना, व्यवहार और आत्मा दोनों में, कि एक में? दोनों में। हाँ, चलो आगे आगे बात करें। जिसको बात करनी है आप बोल सकते हैं हाथ उठा के। एक मिनट, हम प्रेक्षा अनम्यूट कीजिए। आपने पापा मम्मी दादा दादी को कितना हाँ बोला, कितना ना बोला? प्रेक्षा, सबको। सबको ना बोला कि हाँ बोला? हाँ। ओ वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। और अभी विजय दीदी के पास सब आपको त्रिमंत्र आता है? यस। दूसरा 9 कलम आते हैं? ओके, तो विजय दीदी को पूछ के सब पक्का करने का है। ओके ओके ओके। और किसको क्वेश्चन है? ओके, मोनिका दीदी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। वो पहले नवंबर को 3 डेज हॉलीडेज थी, तो उस दिन मैं लेटली उठी थी 9 o'clock जैसे। तो तब से मैं जल्दी उठ ही नहीं पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश करूँ आलस आ जाती है, और उसकी वजह से मेरा सत्साधन और सुपर ब्रेन योगा टूट जाता है। कितने बजे सो जाते हो? 10:30 या फिर 10:50 कभी कभार। हाँ, तो 10:30 को सो गए तो अच्छी बात है। तो अंदर सूचना देने की कि हे दादा भगवान, आप क्या नाम बताया आपका? भूल गया मोनिका। मैं। मोनिका। तीनों के नाम में मेरा अदल बदल हो जाता है। तो आप बोलना कि हे दादा भगवान, ये मोनिका को सुबह 5 बजे या 5:30 बजे, जो भी आप कहते हैं, उठा दीजिएगा और मोनिका उठ जाएगी। और अंदर शुद्धात्मा दादा भगवान की हाजिरी में बोलेंगे तो फिर ये धीरे धीरे करेगी। और दूसरा ये है कि अलार्म भी लगा सकते हैं, मगर मोनिका बोले कि अभी सोने दो, तो आपको मोनिका से बोलना है कि नहीं मोनिका, ऐसा नहीं, चलिए उठिए, बहुत आनंद करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे। पूरी कितनी जिंदगी सोने में बितानी है? 8 घंटा तो बहुत हो गया। तो 10:30 बजे आप सो गए, 7 घंटा 8 घंटा तो बहुत हो गया, ठीक है ना? हाँ, मैं निश्चय करती हूँ और अलार्म भी लगाती हूँ जब नहीं, सुबह। देखो निश्चय आप करते हैं कि मोनिका से करवाते हैं? मैं करवाती हूँ। हाँ, करवाओ और मोनिका से बात करो। और हाँ, और लोगों की बात मोनिका जी जल्दी नहीं सुनेंगे, मगर आप शुद्धात्मा दादा भगवान की हाजिरी में मोनिका से बात करोगे कि मोनिका ऐसा नहीं, ये आप दादा भगवान की हाजिरी में प्रार्थना करते हैं और आप उठना, और हम दादा भगवान से बोलते हैं कि मोनिका को उठाना, तो उठ जाएगी मोनिका। 1-2 दिन आलस करेगी, फिर तीसरे दिन नहीं करेगी। हाँ, और वो उठेंगे तो सुबह का समय तो बहुत बढ़िया होता है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो 4:30 से 6:30 का समय तो बहुत प्रेशियस समय होता है। उसमें जो भी काम करते हैं उसमें चित्त इतना अच्छा होता है कि उसका बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है। और वैसे भी सूर्य नारायण, सूर्य, इतने बड़े सूर्य भगवान उठ के चले आए, बाद में हम उठे तो दादा भगवान हम लोगों से हंसते थे कि आप कितने बड़े महान हैं कि सूर्य
देव आ गए फिर भी आप उठते नहीं। ऐसा दादाजी हमारे साथ मस्ती करते थे लोगों के साथ कि भाई आप तो कितने बड़े सूर्य देव के बाद में उठते हैं। तो ऐसा बोलना। और शाम का खाना कितने बजे खाते हैं आप? कभी कभार 9:30 सत्संग के बाद, और या फिर 8:30 को हो जाता है पहले। नहीं, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो करिए मम्मी से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा के कि भाई सुबह शाम का खाना हो सके उतना थोड़ा जल्दी खा लेना है। यदि आप 7:30 8 एटलीस्ट 8 से पहले 7 7:30 को खाएंगे तो सुबह में जल्दी उठ पाएंगे। जितना लेट खाना खाओगे सुबह में उठने में दिक्कत आएगी। हाँ, बट मेरा स्कूल का टाइमिंग 5 o'clock है, तो मैं क्या? 6:30 को, मेरा स्कूल का टाइमिंग 5 o'clock को छोड़ते हैं, तो मैं घर आके 6:30 को खाती हूँ, बाद में मुझे 9:30 को फिर से मिलता है। फिर भूख लगती है। अच्छा, 2 बार खाना खाते हो तो फिर हाँ। नींद ज्यादा आएगी। तो 9:30 को भूख लगती है तो ऐसा करो 8:30 को थोड़ा सा लाइट ले लो, ज्यादा नहीं। अपने हाँ। खाना तो खाया तो फिर मेरे कहने का मतलब एक ही है कि देरी से जितना खाना खाते हैं सुबह उठने में मुश्किल होती है। एक चीज वो है, दूसरा चीज अपनी निश्चय और प्रकृति है। तो दो में आपको थोड़ा सा चेंज आवश्यक है। और ये तो 1-2 बार नहीं देंगे 9:30 को तो वो समझ जाएगी प्रकृति को अभी 9:30 को नहीं मिलने वाला है। हाँ। हाँ, नहीं तो देते रहेंगे तो वो तो रात को 12 बजे भी मांगेगी कि अभी भजिया चाहिए यार, बहुत भूख लगी। आदत तो जैसी बनाएंगे ऐसी बनेगी। हाँ। आमतौर पे तो भगवान ने तो ऐसा बोला है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, मगर वो तो हम चलो अभी नहीं करते हैं, पर बहुत देरी से खाना खाना ठीक नहीं है, शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तीनों पहलुओं से। हाँ। ठीक। हाँ। ओके प्रेक्षा, आप क्या बताते हैं हमको? प्रेक्षा, क्या बताते हैं हमको? वो चैप्टर 7 ओवर फूड। ओके ओके। देव, देव आपको क्वेश्चन है ना? हाँ आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब मम्मी ने ना मेरे को कहा है कि तू अपना टाइम टेबल है ना खुद से बना ले, मतलब कि पूरे दिन का टाइम टेबल मेरे को खुद से बनाना है। तो अभी मैंने बना तो दिया है, लेकिन मैंने टीवी का टाइम और मोबाइल का टाइम भी रखा है और पढ़ने का टाइम भी रखा है। तो अब मैं पहले टीवी देखता हूँ स्कूल से आने के बाद 1 बजे के बाद, और फिर शाम को मेरा पढ़ने का टाइम होता है। तो फिर मम्मी और वो कहते हैं कि मतलब पढ़ ले, उसके बाद जितना तेरा टाइम होगा उसमें तेरे को मोबाइल मिलेगा। लेकिन फिर ऐसा होता है कि मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन मिलता नहीं है, तो मेरे को ऐसा होता है कि मतलब क्यों नहीं देते। और फिर ये ऐसे यस आप वो काम बताएंगे ना तो ऐसा होगा कि नो ही कर दो, उन्होंने मेरे को मोबाइल नहीं दिया था। पूरे दिन में कितने टाइम मोबाइल देखते हो आप? नहीं, टीवी का और मोबाइल का दोनों का होके दोनों का टाइम 1.5 घंटा रखा है और पढ़ने का टाइम 2 आवर्स। टीवी का कितना समय और मोबाइल का कितना समय? टीवी का 1.5 घंटा और मोबाइल का भी। 1.5 घंटा, 3 घंटा टोटल? हाँ। वो तो गलत बात है। वो तो मैं भी मंजूर नहीं करूंगा। आपके मम्मी पापा की क्या बात है, मैं भी उसको अलाउ नहीं करता। 3 नहीं, घंटे? इतना सारा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, 3 घंटा टाइम। पढ़ने का टाइम 2 घंटा और टीवी मोबाइल का 3 घंटा, ये तो कोई रेशियो है क्या? वो आपको मतलब आपके पास इतना सारा टाइम कहाँ से आ गया? तो आधा घंटा ठीक है भाई, आधा घंटा टीवी देख लिया तो ओके भाई, वहां तक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। और मोबाइल में क्या करते हो आप?
मैं कई बार यूट्यूब में शॉर्ट्स देखता हूँ ज्यादातर। क्या क्या? यूट्यूब में शॉर्ट्स देखता हूँ। शॉर्ट? रील क्या रील रील मैंने क्या? मतलब कि ऐसे यूट्यूब में जैसे बड़े बड़े वीडियोस आते हैं वैसे थोड़े 1 मिनट न्यूज? शॉर्ट्स। ठीक है, एक चीज तो ये है कि आपका चित्त कितना उसमें यूज होता है, आपकी चित्त की शक्तियां कितनी जाती है और आपका समय कितना जाता है, और उसमें से क्या मिलता है आपको, प्रोडक्शन या लाभ क्या है। सिर्फ मुफ्त में समय आया इसलिए गंवाने के लिए? समय मुफ्त होता ही नहीं है। टाइम इज अ वेरी प्रेशियस एसेट। कहावत है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी। और आपकी क्लास में कितनी रैंक आती है? टॉप है ये क्या? फर्स्ट फर्स्ट 2-3 में? नहीं, कहाँ पर है आपका? कौन सा वो क्या ग्रेड देते हैं, क्या देते हैं? हमें परसेंटेज होते हैं लेकिन हाँ। वैसे तो मैं अभी 7th और 8th में थोड़ा रिजल्ट डाउन हो गया है। वैसे क्यों? 7th के हाँ। फर्स्ट सेम में टॉप 10 में था। और अभी अभी डाउन होके कहाँ चला गया? पहले मेरे 89 तक होते थे, अब डायरेक्ट 70 में हो गया परसेंटेज। हाँ, तो 20% कम हो गया तो क्या वजह तो ढूंढो है। ये चीत और ये टीवी और मोबाइल तो खा खा जाएंगे, आपकी कैरियर को खा जाएंगे, तो फिर कहाँ से लाओगे आप? तो आप खुद को बोलो कि पहले 89+1 90% लाके दिखाओ, फिर टीवी मोबाइल की बात करेंगे। सेल्फ को ही आपको सेल्फ रेगुलेट करना है ना। मम्मी हाँ। पापा कहाँ तक करेंगे, और मम्मी पापा का तो सुनेंगे भी नहीं आप जल्दी। आप खुद ही खुद को मॉनिटर करो कि भाई क्यों 89 से 70 हो गया। आप ही बोलो क्यों हो गया, आपको तो मालूम होगा। हाँ, मैं ऐसा मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को। ये और 7th। और और ओवर कॉन्फिडेंस के अलावा क्या हुआ? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए तो ज्यादा। फिर आप भी जानते हो, आपके पास ही है निदान तो रोग का, तो दवाई भी आपके पास होनी चाहिए। अभी आप ही बताओ क्या करोगे तो 89-90 वापिस होगा, आप ही बोलो। अभी ऐसा किया है कि ये जो यूनिट टेस्ट और वैसा होता है ना, अभी मतलब कि मैंने कहा तो मुझे मिलता तो नहीं है लेकिन अब जितना होगा उतना अवॉइड करूंगा ऐसा। हाँ, बिल्कुल मोबाइल नहीं मिलता, एक भी मिनट नहीं? ना वैसे तो मिलता है लेकिन तो फिर मतलब कहा है आधा घंटा और फिर 15-15 मिनट कहते हैं और ऐसे ले लेते हैं तो तो ले थोड़ा ही वो। लेंगे ना, पर आपके परसेंटेज नहीं आते तो ले लेकिन आपके आपके माता पिता की जगह मैं होता तो मैं तो देता ही नहीं कि नहीं, पहले परसेंटेज लाके दिखाओ फिर दूसरी बात करें हम। मैंने कहने का मतलब ये है, आपके मन को समझाओ कि समय इंपॉर्टेंट है, चित्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त जितना इसमें जाएगा ना टीवी और मोबाइल में, तो पढ़ने की किताब में भी वही दिखेगा सब, चित्त पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। आप लोग वो नहीं समझते हो कि चित्त जो बिगड़ता है उसको कौन साफ करेगा। जिसमें जिसमें चित्त जाता है उसका इंप्रेशन पड़ता है चित्त के ऊपर, और फिर आप पढ़ाई करने बैठते हो, उस समय चित्त पढ़ाई में होता है कि वही दिखाता है चित्त? नहीं, पढ़ाई में नहीं रहता है चित्त तो ज्यादा। फिर ये बात महत्व की है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि जितनी चीज में चित गया उसका दाग चित के ऊपर रहते हैं, और दाग कोई साफ नहीं कर पाएंगे। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो क्या करूँ? अभी कह सकता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो मैं अब नहीं करूंगा, लेकिन जब एग्जाम्स आती है तब ऐसा ही होता है कि मुझे आता है मुझे आता है, तो वो यार अवॉइड करने के लिए। तो उसको बोलने का कि अभी एग्जाम में मार्क नहीं आया तो मेरे जैसा कठोर कोई नहीं आपके साथ, आप ही आपके साथ बात करो खुद अंदर से। आपको फिर खाने की पसंद वाली चीज छोड़ देनी पड़ेगी। मार्क्स नहीं आए, वो ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो एक एक आइटम पसंद वाली छुड़वाता जाऊंगा। हाँ। हाँ, उसको सेल्फ क्रिटिक बोलते हैं। जो खुद ही खुद को के प्रति तटस्थ होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बाकी वाही वाही तो अंदर से बहुत होता है, पर रिजल्ट तो बोलेगा ना।
हाँ तो वाहवाही करने से हम हाँ हमें बहुत आता है, इससे क्या फायदा? अभी मुझे ऐसे ही वो हो तो रहा है। दुनिया बोलनी चाहिए कि इसको अच्छा आता है, खुद बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जब दुनिया बोलेगी कि हाँ आपको बहुत अच्छा आता है, तब बात मानने की। मैं खुद ही बोलूं कि मैं अच्छा डॉक्टर, उसका कोई मतलब नहीं। जब मेरे पेशेंट बोले, दुनिया बोले कि आप अच्छे डॉक्टर है, तो उसका मतलब है। और दुनिया ऐसे वैसे नहीं बोलती है, वो तो बहुत कड़ी परीक्षा लेती है। ठीक है, हाँ तो हाँ अभी थोड़ा संभल जाओ। नहीं, मुझे ऐसा होता है क्योंकि अब मेरे जब 60 में थे, मतलब कि 50 अब परसेंटेज आते थे, उसमें अब 32 34 ऐसे परसेंटेज हो गए, डायरेक्ट हाफ हो गए वही मतलब। मैं सब कुछ समझ गया हूं कि आपका ये क्यों बिगड़ा है। तो मैं शॉर्ट में बात कर लिया आपसे, सबसे बात करनी है ना हाँ कि भाई आपके समय को संभालो, आपके चित्त को संभालो, और हाँ सेल्फ डिसिप्लिन्ड होके स्टडी करिए या जो भी काम करना है करिए। नहीं तो जिंदगी चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। एक बार आप निचली ग्रेड्स में चले गए तो आपको भी उत्साह नहीं होगा फिर आगे बढ़ने का, ऊपरी ग्रेड्स में आने का। बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ और दादाजी तो बोलते थे अपने मुंह पर तेज होना चाहिए। विद्या का तेज होता है, अपने खुद के चारित्र का तेज होता है। कितने के मुंह पर तेज है? तो पाउडर लगाते हैं तो भी सेल्फी अच्छी नहीं आती है। हंसते हैं सब मेरे पर, नवनिधि हंसती है देखो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब कुछ। अंतर की समृद्धि होगी, विद्या की होगी, सिंसियरिटी की होगी, डिसिप्लिन की होगी, टाइमिंग की होगी, पंक्चुअलिटी की होगी, कैरेक्टर की होगी, तब जाके मुंह पर तेज होगा, समृद्धि दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। हाँ चलो आगे बढ़े रजनी दादाजी। हाँ ओके ओके। देव, आप डिसाइड करो क्या करने का है, और बड़े होके क्या करने का है आपको, कुछ सोचा? नहीं। तो वो भी सोचना पड़ेगा ना। हाँ डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, कुछ तो बनने का है कि ऐसे आपके पापा के शॉप में जाने का है? नहीं। नहीं तो जहां भी ये- जाना है, मेरा अनुभव तो मुझे ऐसा बोलता है कि जितना भी समय गंवाओगे, जितना भी चित्तवृत्ति वेस्ट करोगे, तो ये दुनिया में हम पीछे 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 जाते जाएंगे। और यदि दुनिया में आगे रहना है तो समय और चित्त का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना पड़ेगा। चले आगे चले। ओके। आप अव्यय, अव्यय किधर है? अव्यय चला गया? अक्षय काका, ओ अव्यय, हाँ अभी सुना तेजस दादा ने क्या बोला? हाँ सुना। ये चीज और मोबाइल, आई मीन ये मोबाइल और टीवी आपका चित्त को बहुत नुकसान करता है। वो तो बार बार दीपू दादा ने कितना बोला, वो फ्यूचर के लिए नहीं अच्छा होगा, वो जरा सोचने का होता है। और अभी फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा। ओके, फंडामेंटल मैथ्स में और साइंस में और कोई सा भी सब्जेक्ट में बाद में बहुत बहुत मुसीबत आएगी। अभी राइट शैलेश दादा? बहुत मुश्किल। जिसकी नींव अच्छी नहीं होती, वो बिल्डिंग ही कहाँ से बनेगा, वो गिर जाएगा बिल्डिंग। तो अभी मेरा तो नींव नींव रखने का समय है। मेरा 8 के फर्स्ट सेम में ऐसा ही हुआ, मैंने कहा वैसा। रजनी दादा ने कहा ना कि साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट में डायरेक्ट डाउन, तो मैं ऐसा ही हुआ, डायरेक्ट हाँ मतलब हाफ मार्क्स हो गए। तो बाद में आपको कुछ साइंस में जाना पड़े, कैसे जाएंगे? ध्यान रखूंगा तो। हाँ तो ये सब सोचो। आज आज तो शैलेश दादा ने सब बच्चे को बोला है, ओके नोट आपको, देव नहीं नहीं को सब। हाँ जरा ध्यान रखना। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। अभी हम, आपने हाँ बोलो।
आपने राजचंद्र की कहानी सुनी? राजचंद्र जी को छोटी उम्र में उन्होंने एक साथ में 100 अवधान बोलते हैं। हर अलग अलग कोने से 100 व्यक्ति ने 100 चीज बताई, उन्होंने बिना भूल के 100 वही क्रम में दिखा दिया था। और आपको कितना याद रहता है? 1 2, और 2 में भी गलती करते हैं। तो राजचंद्र जी का कितना चित्त शुद्ध होगा, उनकी कितनी शक्ति होगी, एक साथ में 100 चीज अलग 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 देखना कभी। वो कहाँ से लाए होंगे? हमारे जैसे मनुष्य थे वो। और कई लोगों की होती है ऐसी, इतनी चित्त अच्छी होती है जो पेज एक बार देख लिया, फोटोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी, और अपना तो 10 बार पढ़ते तो भी 11वीं बार याद नहीं रहता है कि क्या हो गया एग्जाम में। ये ठीक नहीं है। ठीक है? हाँ। ओके, कल बताना आप लोग क्या सोचते हैं ये बारे में। ओके, क्या डिसीजन लिया। ओके, नहीं सोचे। अभी हम चलिए पद सुनेंगे। हाँ जरूर। मोनिका दीदी का टर्न है। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ही साक्षी, वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी नमस्कार करूं। श्री सिमंदर स्वामी नमस्कार करूं। उदासीन भावे कारजा वर्तते, उदासीन भावे कारजा वर्तते, कायं कायमनो सतयु, क्षेत्र महाविद्याने नमस्कार करूं। क्षेत्र महाविद्याने नमस्कार करूं। पांच विषयोनि पवित्र निवृत्त, पांच विषयोनि पवित्र निवृत्त, पंच परमेशित प्रतिशत, पंच परमे प्रतिशत, अनादिस स्वामीने नमस्कार करूं। अनादिस स्वामीने नमस्कार करूं। विहत स्वरूपी ब्रह्मादि व्यापक, विहत स्वरूपी ब्रह्मादि व्यापक, परमात्मा ज स्वदूष, परमात्मा च स्वदूष, मुक्ति देहि विधेयने नमस्कार करूं। मुक्ति देहि विधेयने नमस्कार करूं। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षी, वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान। जय सच्चिदानंद। जय सचिन, आपने बहुत बढ़िया पद निकाला, अच्छा गाया। तो ये पद क्यों निकाला आपने? ये मैंने चूज किया क्योंकि इसमें हम जो भी हम नमस्कार विधि में बोलते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। ओके। और महावीर चक्र के आपने आपका क्या मालूम है महावीर चक्र के बारे में? महावीर क्षेत्र में तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी विचरते हैं, जहाँ पे हमें जाना है क्योंकि वहीं से हमारा मोक्ष है। ओके। और दूसरा कुछ जानने का है तो थोड़ा वो मुझे हाँ बोलो। वो मुझे अनादि स्वामी ने नमस्कार करूं, उसका मतलब क्या है?
दादा उसका हाँ ठीक है। तो स्व अमी, स्व मैंने शुद्धात्मा जो खुद का स्वरूप है, और खुद के स्वरूप में जब हम रहते हैं या भगवान भी खुद के स्वरूप में केवल ज्ञान स्वरूप में है, तो उसका अनंत सुख अनंत आनंद जो परमानंद वो स्व अमी अमृत जैसा जो शीतल आनंद है उसको स्व अमी बोलते हैं। अनादि मीन्स विदाउट बिगिनिंग, सो विदाउट एंड, जो सनातन है, जो हमेशा के लिए है, जिसकी आदि मैंने बिगिनिंग भी नहीं और बिगिनिंग नहीं इसलिए एंड भी नहीं। तो हमारा ये स्व शुद्धात्मा का जो सुख है वो शुद्धात्मा अनादि अनंत है, इसलिए उसको अनादि स्वामी बोलते हैं। बाकी जब हमें दृष्टि प्राप्त हुई कि मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ, तो उसकी शुरुआत बोली जाती है, मगर सचमुच में तत्व स्वरूप से वो हमेशा का है। अनादि स्व अमी ने नमस्कार करूँ छू मीन्स जो सनातन है, जो परमानेंट है, जो हमेशा का है, ऐसा ही हम मेरे स्व के स्वरूप के शुद्धात्मा के अमी मैंने परमानंद को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे बोलते। ठीक है मोनिका। ओ शैलेश दादा, विराट स्वरूपी क्या हो? विराट स्वरूपी क्या होता है? विराट स्वरूप हम सामान्य लोग भाषा में ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा, हाँ, तो मगर बहुत बड़ा जब देखते हैं तब होता क्या है, तो बोले हमारा अहंकार चला जाता है। सो मूल भगवान की भाषा में जो मेरा अहंकार निकाल दे, मैं शैलेश हूँ, वो जो निकाल सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो निकाल देते हैं, वो विराट स्वरूप है, उसको विराट स्वरूप बोलते हैं। और दूसरा कि सिमंदर स्वामी का जो स्वरूप है केवल ज्ञान स्वरूप है, सभी तीर्थंकरों का और सभी केवल ज्ञानियों का जो केवल ज्ञान स्वरूप है, उसमें शुद्धात्मा परमात्मा स्वरूप से व्यक्त हुए, उसके ऊपर के सभी आवरण निकल गए, तो उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सके, मीन्स पूरे ब्रह्मांड के ज्ञेयों को देख सके, ऐसा होता है। वो देह में सीमित नहीं रहते हुए पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर सकता है, या तो पूरे ब्रह्मांड के सभी ज्ञेय दृश्य सभी तत्व उसमें दिखाई देते हैं, इसलिए वो अर्थ में भी उसको विराट स्वरूप बोलते हैं और ब्रह्मांड में व्यापक होते हैं। और दूसरे अर्थ में हमारा अज्ञान रूपी अहंकार ले जाते हैं, उसी अर्थ में भी उसको विराट स्वरूप बोल सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सिमंदर स्वामी ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, संपूर्ण व्यक्त है, निरावरण हो चुके हैं। ओके मोनिका। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। वैशाली बेन, आपने पद ऊपर से क्वेश्चन, आपको पद पे क्वेश्चन है? वैशाली बेन नहीं, अलग है उनका क्वेश्चन। સચ્ચિદાનંદ યજ્ઞ અંકલના પદ વિશે ક્વેશ્ચન નથી. ओके 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 ओके, तो बच्चे लोग ओके, बाद में हम कल मिलेंगे। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सबको जय सच्चिदानंद। ओके वैशाली बेन, आप जय गुजराती में सच्चिदानंद। बोल सकते हैं, जवाब हिंदी में मिलेंगे। That's fine, yeah. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે ધીમેથી ઉતાવળ કરવાની વાત કરી છે દાદાએ, પણ એ ધીમેથી ઉતાવળ કરવા માટે ચિત્તનો એકાગ્રતા હોવી જોઈએ કે ફોકસ હોવું જોઈએ, ઓર કે ઉપયોગ પ્રોપરલી હોવો જોઈએ. તો કોઈ વાર મને એવું લાગે કે આટલી બધી પ્રાર્થના કરું છું, શક્તિઓ માંગુ છું, તોય કેમ એવું હળબળિયું કામ થઈ જાય છે કે it's very instinctive, it's like reflexive instead of કે શાંતિથી કામ નથી લેવાતું. તેના માટે શું કરવાનું? બરોબર. તો આ દાદાનું જે સૂત્ર છે, ધીમેથી ઉતાવળ કરજો. સો પહેલામાં પહેલું તો હું મન हिंदी में बोलने का। सॉरी पहले तो मैं दादा का ये जो सूत्र है कि धीरे से जल्दी करना, तो पहले चीज ये है कि दादाजी बोलते हैं कि अबाव नॉर्मल इज ऑल्सो फीवर, बिलो नॉर्मल इज ऑल्सो फीवर, कम टू नॉर्मल।
तो दादाजी ने बताया कि जल्दी करना ऐसा बोलेंगे तो प्रकृति रघुआट में आ जाएगी, जल्दी जल्दी उतावड़ उतावड़ हो जाएगी। धीरे से करने का बोलेंगे तो शांति से बैठ जाएगी। सो धीरे से उतावल करना वो बैलेंसिंग एक्ट है। क्या है? तो नॉर्मलिटी में लाने के लिए ये व्यवहार की बात की दादाजी ने, प्रकृति के लिए की, मन वचन काया के लिए की। अभी दूसरी बात यह है कि यदि मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ तो मैं तो अचल हूँ, मेरे में उतावल भी नहीं, धीरे कुछ, मैं तो दोनों को जानने वाला हूँ। और अभी मैं शैलेश को बोलता हूँ कि शैलेश भाई आप धीरे से जल्दी करिए। क्या करिए? धीरे से जल्दी करिए। तो शैलेश भाई जल्दीबाजी में है, जैसी आपकी प्रकृति है। क्या आपकी प्रकृति जल्दीबाजी वाली है? क्या है? धड़ाधड़ धड़ाधड़, जिसको इंग्लिश में हाइपर एक्टिव भी बोलते हैं, मुझे तो व्हाटएवर इट इज। तो वहां दादाजी कहते हैं कि शुद्धात्मा प्रज्ञ प्रकाश में आप वैशाली जी को बोलिए कि वैशाली जी धीरे से जल्दी करना है। क्या करना है? सो वैशाली विल, हम वैशाली को देखने जानने वाले हैं और प्रज्ञ प्रकाश में हम उससे बात करने वाले हैं। तो धीरे से वैशाली विल काम डाउन। फिर बहुत धीरे हो गई तो बोलते धीरे से जल्दी करो। एक चीज ये है, तो दैट विल ब्रिंग प्रकृति टू नॉर्मलिटी। दूसरी चीज आपने चित्त की जो बताई, चित्त की एकाग्रता की जो बात की, उसके 2 स्टेप से हमारे लिए पहला स्टेप है तो मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। जब मैं मेरे शुद्धात्मा की जागृति के साथ होऊंगा तो मेरा चित्त स्थिर हो जाएगा, तो अपने आप वैशाली को देखेगा और अपने आप वैशाली का चित्त भी काम में रहेगा। दूसरी चीज ये है कि वैशाली का जो चित्त है या शैलेश का जो चित्त है उदय के अधीन, रिलेटिव चित्त जो है वो प्रकृति के अधीन है, उदय के अधीन है। सो वो धीरे फास्ट तितर बितर होता रहता है, तो उसको हम देखने जानने वाले हैं। और दूसरा, फिर अवकाश के समय में मैं शैलेश से या आप वैशाली से प्रयोग करवा सकते हैं कि भाई चित्त शुद्धि के लिए चलो कुछ करते हैं। तो दादाजी ने बताया कि चित्त शुद्धि का ही हमारा पूरा जर्नी है, या तो धर्म है। चित्त संपूर्ण शुद्ध हो गया, उसका नाम केवल ज्ञान। तो क्या कर सकते हैं? तो बोले आंख बंद करके त्रिमंत्र बोलिए या उल्टा त्रिमंत्र बोलिए, 100 से उल्टे जाइए 99, 98, 97, या 2 छोड़ के बोलिए 100, 98, 96, 94। तो चित्त को इतना एकाग्र रहना पड़ेगा, धीरे धीरे वो स्थिरता पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? और उसमें भी सिद्ध स्तुति है तो चित्त के लिए बहुत स्थिरता लाने वाली है। त्रिमंत्र या तो चरण विधि पढ़ के करते हैं तो चित्त को स्थिर करते हैं। तो इस ढंग का धीरे धीरे प्रयोग भी कर सकते हैं। और खास तो वैशाली के ज्ञाता दृष्टा रह के उसके साथ बात करके हम धीरे धीरे कर सकते हैं। वैशाली को कह सकते हैं कि वैशाली इतने जल्दी भी आप करते हैं मगर रिजल्ट क्या आता है, और आप धीरे से जल्दी करेंगे तो देखिए तो सही, शायद रिजल्ट इससे भी बेहतर आएगा। तो इस ढंग से धीरे, ये प्रकृति का स्वभाव है। आप जो बोल रहे हैं वो प्रकृति का एक, कहते हैं ना, मैं मन वचन का की आदतों और उसके स्वभाव को भी जानता हूँ और मेरे खुद के स्वभाव को भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं स्व पर प्रकाशक ऐसा शुद्धात्मा हूँ। क्या है? तो हो जाएगा। ये दोनों ढंग, रिलेटिव और रियल। રાઈટ, એટલે પ્રેક્ટિકલ સોલ્યુશન છે એની માટે કે તમે ચિત્તની શુદ્ધિ માટે તમે આવી રીતે આંખ બંધ કરીને ત્રિમંત્ર બોલી શકો કે સત્સાધન કે બધું अक्षर वंचाए, अक्षर सामे वंचाए। आप एक बार पढ़ के तो देखना कि चरण विधि के हर अक्षर आप आंख बंद करके पढ़ सकते हैं। कई बार तो मिस हो जाएगा तो वापिस आना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पर करते करते चित्त इतना पावरफुल हो जाएगा। दादाजी ने बताया था कि उस समय आत्मा पढ़ता है, मैंने शुद्ध चित्त पढ़ता है, तो आवरण एकदम से टूटते हैं और बहुत फायदा होता है। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और मूल तो जो मूल सूत्र आपने बताया वो कम टू नॉर्मलिटी के लिए है, व्यवहार में नॉर्मलिटी के लिए दादाजी ने दिया है। नॉर्मलिटी इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, ऐसा दादाजी ने बताया ना, रिलेटिव के लिए। રાઈટ રાઈટ, યા પ્રકૃતિ એવી છે કે either it's too relaxed or it's too hyper. એટલે Yeah, I know મને that. ખ્યાલ આવ્યો કે either ધીરે ધીરે જલ્દી કરવાનું છે કે
ઉતાવળથી ધીરે કરવાનું છે બંને પર meet in the middle. यस, Very good. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई, कश्यप भाई, जी जय सच्चिदानंद, सबको जय हाँ जी। सच्चिदानंद। रजनी जी Yes. जय सच्चिदानंद, शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। yes. जी पद शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ बोलो और करो। जी ये पद है अजर अमर वीरडो CD8। इसमें है अजर अमर वीरडो ज्ञान फला आंबलो प्रवचन अंजना सत्संग छायलो मोक्ष सत्संग आज ब्रह्मांड आंबियो। ये समझ नहीं आया, अजर अमर वीरडो क्या बता रहे हैं? अजरामर मैंने जो हमेशा का है, अजर और अमर दो शब्द है ना, हाँ अजर और अमर मैंने फॉरएवर, परपेचुअल, परमानेंट, हमेशा का, सनातन, जिसका विनाश नहीं होता है, जो अमर है, हाँ इसकी बात करने है। और वीरडो मैंने हाँ। जो एक अमृत की धारा जैसी होती है ना, इस हाँ। प्रकार की है ज्ञान के बारे में कि भाई अमृत धारा जैसा ज्ञान जो है, वीरडो एक प्रकार का स्प्रिंग या वाटर का हाँ, सोर्स होता है। यस यस, तो उसके लिए यहाँ पर ज्ञान ये का ज्ञान, हाँ, ये ज्ञान- ज्ञान के लिए यूज किया गया है। पाताली झरना बोलते हैं ना ज्ञान का, हाँ इसके लिए यूज किया गया है। तो ज्ञान तो- फला आंबलो आंबलो। हाँ, मैंने ये आम्र वृक्ष पर जैसे अच्छे बढ़िया फल आते हैं, हाँ, तो ये ज्ञान के फल ऐसा है। ये रूपक मैंने क्या बोलते हैं, एक सिमिली देते हैं कविराज, पर कहने का मतलब है कि ये जो वितराग विज्ञान, जो परमात्मा स्वरूप अक्रम ज्ञान हुआ, वो मीन्स हमेशा का सनातन फल देने वाला ये ज्ञान स्वरूप है। और प्रवचन अंजना सतसंगे छायलो, मतलब ज्ञान के फल मतलब आम्र पेट पे लगते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना कि हाँ हाँ, वो रूपक दिया है। हाँ, अच्छा, और प्रवचन अंजना, अंजन मैंने आँख का जो अंजन आंजते हैं ना, वो इसको हाँ। अंजन बोलते हैं। तो ये दृष्टि अंतर की जो हमारी खुली हुई और दृष्टि का जो पुष्टि हो रही है, शुद्धात्मा दृष्टि की, जो वितराग दृष्टि की, जो 5 आज्ञा की, मूल ज्ञान की, उसको अंजन, ज्ञानांजन बोलते हैं ना, ज्ञान के अंजन। ज्ञानांजन, अच्छा उनके वचनों का अंजन हो रहा है हमारे ज्ञानांजन, ज्ञान का अंजन हो रहा है, सत्संग का छाया मिल रहा है, ऐसा हाँ, ना? सत्संग की छाया, हाँ, सत्संग की छाया, यस। मोक्ष सत्संग आज ब्रह्मांड आंबियो। या मोक्ष सत्संग, मोक्ष देने वाला जो मूल सत्संग है, वो मैंने यही है, यही, और यही मोक्ष देने वाला प्रत्यक्ष सत्संग ब्रह्मांड आंबियो, जिसने पूरा ब्रह्मांड जीतिया और पूरे ब्रह्मांड में जो पहुंचा, दोनों अर्थ हो सकते उसके। वो ब्रह्मांड में पहुंचा। और फिर ये महाविराट का है, थोड़ा समझाए, महाविराट का है प्रत्यक्ष भगवान। हाँ, मैंने महाविराट काय प्रत्यक्ष भगवान देह साधे सिद्ध क्षेत्री 14 लोकी नाथ जान। मैंने ये रिलेटिव काय तो छोटी दिखाई देती है, मगर अंदर जो भगवान प्रकट हो गए, जो अमूर्त और अरूपी है, तो महाविराट काय मैंने ये पूरे ब्रह्मांड में फैले 14 लोक का नाथ है बोलते ना। तो इस अर्थ में बताया गया है कि उनका व्याप, उनका वो तो 14 लोक में पहुंचता है। देह साथ ही सिद्ध क्षेत्री, तो सिद्ध भगवान जो सिद्ध क्षेत्र में होते, वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। उनकी काया तो होती नहीं, मगर कहने का मतलब कि वो ज्ञान दर्शन का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। मतलब दादा भगवान देह के साथ है, लेकिन हाँ, वो अंदर से सिद्ध है, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, उनका गुण सिद्ध है, मुक्त स्वरूप है, ऐसा? हाँ, ऐसा बोलना चाहते हैं। 14 लोक की नाथ जान, मैंने 14 लोक के नाथ है, ऐसा आप उसको पहचानो, जानो। महाविराट का है मतलब कि वो, मतलब कि उनका मतलब पूरे ज्ञान प्रकाश, उनका ज्ञान प्रकाश इतना विराट है कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर सकते, ऐसा बोल रहे। देह की काया की बात नहीं कर रहे, ज्ञान स्वरूप की बात कर रही है। ठीक है, समझ गए।
अनंत प्रदेशे दादा प्रकाशमान जगत कल्याण वर्षे स्वयं सिद्ध उदयमान जी अनियम नु मूल नियम व्यवस्थित एज नियम क्रमिक मार्गे अपवाद मोक्ष मोक्ष वैभेज संयम। जी तो ये अनंत प्रदेश है दादा प्रकाशमान मतलब कि वो थोड़ा समझाएं कैसे ये बताएं। ये हर एक शुद्धात्मा या आत्मा के अनंत प्रदेश मीन्स एरियाज होते हैं। ये एरियाज अमूर्त और अरूपी हो, फिर भी उसके ऊपर हर एक प्रदेश पर कई परमाणु के स्कंद रह सकते हैं, जिसको हम कर्म भी बोलते हैं। जैसे हमारी कंप्यूटर की छोटी सी हार्ड ड्राइव, अभी तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव भी मिलती है जिसमें 3 टेराबाइट 4 टेराबाइट पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन रहती है। इसी प्रकार से आत्मा के जो अनंत प्रदेश है, तो एक प्रदेश मीन्स एरिया, उसके हर एक प्रदेश पर कितना सारा पुद्गल रह सकता है। मगर यहाँ क्या है तो बोले हर एक शुद्धात्मा के जो अंदर दादा भगवान व्यक्त हो गए, परमात्मा स्वरूप व्यक्त हो गए, तो हर एक प्रदेश में से दादा मैंने परमात्मा का वो शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध दर्शन का, केवल ज्ञान का, केवल दर्शन का प्रकाश वो निकल रहा है। मैंने हर एक प्रदेश में वो ज्ञान प्रकाशमान है, कोई भी प्रदेश में से वो प्रकाश आ रहा है, ऐसा बोलना चाहते। अच्छा ठीक है, वो मतलब वो ज्ञान प्रकाश इतना फैल गया कि हर प्रदेश में हो गया। आत्मा के हर एक प्रदेश में से वही शुद्ध ज्ञान प्रकाश, अनंत ज्ञान का प्रकाश, अनंत दर्शन का प्रकाश ही निकल रहा है। स्वयं सिद्ध उदय भान मतलब क्या होता है? स्वयं सिद्ध, ये उदय मैंने भान सूर्य के लिए बोलते हैं। जब सूर्योदय होता है, जब तो उजाला आता है मैंने पृथ्वी पर, ऐसा जो है यहाँ तो स्वयं सिद्ध मैं शुद्धात्मा हूँ, स्वयं सिद्ध मैंने, इनके ये बर्थ में कोई गुरु नहीं थे, इसलिए उसको स्वयं सिद्ध बोला जाए, स्वयं ही बुद्ध हुए ऐसा बोलते हैं ना। तो स्वयं सिद्ध उदय भान, मैंने ये बाहर तो सूर्य होता है तो उदय, यहाँ तो ज्ञान का उदय हुआ बोले क्या हुआ। तो इस ये स्वयं ही जो ज्ञान का पूरा प्रकाश उदयमान हुआ, वो व्यक्त हुआ, निरावरण हुआ, उसकी बात करें। और ये अनियम नु मूल नियम व्यवस्थित एज नियम, ये थोड़ा समझा। ये नो लॉ की जो दादाजी ने बात की ना, तो अनियम लॉ में व्यवहार की भाषा में सब लोग लॉ की बात करते हैं कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। वो कुदरत के नियम तो अलग ही है, तो इसलिए दादाजी ने बताया। तो अनियम मूल नियम, तो मूल नियम क्या है, कुदरत का नियम क्या है, तो बोले व्यवस्थित ही कुदरत का नियम है। अच्छा, व्यवस्थित शक्ति जो है वो पूरे कुदरत का नियम और नियमन दोनों है। मतलब संसार का नियम जो है वो अलग है, अलग है, और वो जो है वो नहीं अप्लाई होता हर जगह, लेकिन ये व्यवस्थित हर जगह अप्लाई होता है। कुदरत में का जो नियम है वो व्यवस्थित है। संसार के नियम हमारे माने मनाए बने बनाए हुए हैं। क्या है? वाकई कुदरत का नियम ये व्यवस्थित है। और ये मोक्ष वैभव जब संयम, मोक्ष वैभव मैंने हमारा जो मुक्त दशा का आनंद का हम अनुभव करने लगे, शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई, तो वो वैभव तो पूरे ब्रह्मांड में भी किसी बहुत कम लोगों के पास है, जिन या तो तीर्थंकरों की सभा में है या तो ज्ञानियों के आश्रितों को है। तो ऐसा मोक्ष का वैभव है। मगर वो आमतौर पे क्या होता है, वैभव होता है तो लोग डिकंट्रोल हो जाते, छक जाते जैसे बोलते हैं ना। मगर यहाँ तो संयमित हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे मोक्ष का वैभव, मोक्ष का सुख का अनुभव करने लगे तो वो सब संयमित होते चले गए, संयमित हो रहे हैं, संयम में रहते हैं। क्या होते हैं, समझ ऐसे ये बात। फिर ये प्रथम निराकुलता शांति से निरांत स्थिर, ये थोड़ा तो पहले दादाजी ने हमें, मैं शुद्धात्मा हूँ तो निराकुलता दी, निराकुल आनंद का अनुभव करवाया। तो ये हमको अंतर की शांति, आंतरिक शांति, और मैं शुद्धात्मा हूँ स्थिरता रहती है। क्या रहती है, उसके परिणाम से हमको इजीनेस, निरांत रहती है। गुजराती वर्ड है निरांत, मैंने इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि एट ईज। अच्छा, तो ये जो शुद्धात्मा, जो सिद्ध भगवान का 1/8 गुण कहा गया, ऐसी निराकुलता की हमें स्वाद आने की शुरुआत हुई, और उसके परिणाम स्वरूप हमें प्रथम निराकुलता मतलब इसकी शुरुआत हुई अभी निराकुलता।
समझ गए। फिर ये लास्ट पैराग्राफ है, शांति सरस वर्तना सहजे सम प्रकृति आत्मनिष्ठ अनुभूति वितराग स्वर अश्रुति रुचि बिना भाष्यमान गनेगारी प्रतिकृति। सरस सरस वर्तना, मैंने हम एक दूसरों के साथ, हर एक जीव के साथ हमारी जो वर्तना, मैंने मन वचन काया का जो व्यवहार है वो कैसा सुंदर हो रहा है, होना चाहिए कि किसी को हमारे से कुछ भी दुख तो ना पहुंचे, मगर सबको हमारे से सुख या आनंद पहुंचे। अरस सरस वर्तन, अरस परस जो शब्द है अन्योन्य, यहाँ कविराज ने अरस सरस, मैंने एक दूसरों के साथ हमारी वर्तना इसी वितराग, दिल को ठंडक देने वाली, ऐसा बोलते हैं। मतलब अरस जो होता है वो रसीन होता है, सरस रस वाला होता है। नहीं, अरस परस गुजराती में वर्ड है, अरस परस मीन्स अन्योन्य। तो यहाँ कविराज ने उसका परस के बदले सरस कर दिया कि अन्योन्य के साथ दिल को ठंडक देने वाला, आनंद देने वाला वितराग व्यवहार हो रहा है। अरस सरस वर्तना सहजे सम प्रकृति, सम प्रकृति मीन्स ग्रॉस, स्थूल भाषा में बात करें तो नॉर्मालिटी वाली, सम, विषम नहीं, और थोड़े सूक्ष्म भाषा में बात करें तो समभावी, समपरिणामी, उपकारी के प्रति राग नहीं, अपकार करने वाले के प्रति द्वेष नहीं। पार्श्वनाथ भगवान कैसे सम थे, ऐसी हमारी प्रकृति भी द्वंद्वों में सम होती जा रही है, संभाव से निकाल करने की आज्ञा से। सहजे सम प्रकृति, आत्मनिष्ठ अनुभूति में शुद्धात्मा हूं, उसका अनुभव, तो वो वितराग स्वरा श्रुति, वो वितराग स्वर श्रुति, मैंने श्रुत ज्ञान, जो आत्मा को स्पर्श करके वितराग वाणी निकल रही है मेरे कान में से अंदर जाके जो परिवर्तन करवाती, वो श्रुति या श्रुत ज्ञान बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में ये सब बताया गया, इसके परिणाम का वर्णन किया गया है। तो वो मतलब वो वितराग, उनके स्वरों की जो वाणी है उसका परिणाम ये सब आता है। या रुचि बिना भाष्यमान गनेगारी प्रति, ये मेरी जो प्रकृति है, प्रतिकृति मीन्स प्रकृति, ये पूर्व की गनेगारी, पूर्व की भूल जो है मैं शैलेश में करता हूँ, और जो भी मान्यता उससे आज की प्रकृति खड़ी हुई, जो प्रतिकृति खड़ी हुई, तो वो आज मैं शुद्धात्मा होके वो उसको देख रहा हूँ, उसमें मेरी कोई अभी रुचि, मैंने दर्शन मोह नहीं रहा उसमें, मगर निरपेक्ष भाव से, संभाव से मैं उसे देखने जानने वाला हो गया। पिछली गनेगारी अज्ञान का परिणाम। तो भाष्यमान का क्या बताना चाह रहे हैं? भाष्यमान का मतलब है जो दिखाई देता है, वो आभासी है, रियल ऐसा नहीं। भाष्यमान जो दिखाई दे रहा है वो, अच्छा, मतलब जो जगत की चीजें हैं वो उसमें रुचि नहीं रहा। फाइल वन प्रकृति में रुचि नहीं है, लेकिन वो भाष्यमान है, वो अभी मैं देखने जानने वाला हो गया। अच्छा, वो मतलब भाष्य मतलब टेम्पररी सेंस में आया। नहीं, जो दिखाई दे रहा है, भाष्यमान जो दिख रहा है, ज्ञेय और दृश्य के स्वरूप में मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मेरे ज्ञान दर्शन प्रकाश में शैलेश की प्रकृति दिखाई दे रही है। अच्छा, जो पुरानी मेरी गलतियां थी, गुनहगारी मीन्स जो फॉल्ट्स थे, वो आज प्रकृति के रूप में मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें रुचि नहीं है मेरी, जो ऐसा नहीं। ठीक है, समझ गए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत दिनों के बाद दर्शन का लाभ मिला। हाँ जी साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए साहब, एक गुजराती हाँ बोलिए, आप गुजराती में बोलिए, मैं हिंदी में बोलूंगा। हाँ, सारू साहब, एक દાદા ભગવાન કે છે કે આત્મા અને પ્રકૃતિ બે જ છે, બરોબર? હા, આપણે અક્રમ જ્ઞાનમાં તો પછી દાદા ભગવાન આગળ કે છે કે પ્રકૃતિ બધી પ્રારબ્ધ આધીન છે, એટલે એ સમજાવો ને મને કે આ જે પ્રકૃતિ આપણી હોય પ્રારબ્ધ ને આધીન હોય। ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रकृति मैंने फाइल वन अपने लिए, महात्माओं के लिए, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो अपना अंतरात्मा दशा। प्रारब्ध का अर्थ क्या? प्रारब्ध के अर्थ दो है। एक,
जो आज इफेक्ट स्वरूप है, उसके कॉज पहले हो चुके हैं बीज स्वरूप, आज वो इफेक्ट दे रहा है। कोई भी चीज जब इफेक्ट देती है तो वहां मैं स्वतंत्र नहीं होता हूँ, निमित्त होता हूँ। क्या होता हूँ? निमित्त तो होता है। आज की मेरी प्रकृति पूर्व की मान्यताओं के बीज जो पड़े थे कॉजेस, उसके हिसाब से इफेक्ट दे रही है। इसलिए मैं प्रकृति में स्वतंत्र नहीं हूं, मगर वो प्रकृति अपने आप जो भी डिस्चार्ज स्वरूप काम करती है। दूसरी चीज, प्रारब्ध का अर्थ है, जैसे मैंने बताया कि मेरी स्वसत्ता नहीं मगर परसत्ता। तो परसत्ता किसे बोलते हैं? जो संजोगों के अधीन है। आज हमारा नियम होता है कि सुबह में उठकर मैं मंदिर जाऊंगी, देरासर जाऊंगी, इतने पाठ करूंगी, फिर ही चाय पीऊंगी। मगर कोई दिन तबीयत ठीक नहीं हुई, पैर बिगड़ गया, ये किया, तो नहीं जा सकते हैं। तो कितने गेस्ट आ गए, कुछ हो गया, तो वो संजोगाधीन है, इसलिए उसको प्रारब्धाधीन बोलते हैं। इफेक्ट है, इसलिए उसको प्रारब्धाधीन बोला गया है। क्या बोला गया है? उसका मतलब डिसाइडेड होना है, वही होना ऐसा नहीं है। प्रारब्ध का अर्थ है डिपेंडेंसी, संजोगों पर जो अधीनता है, जिसे परसत्ता बोलते हैं, जो पूर्व में हो चुका है, कॉज स्वरूप आज इफेक्ट दे रहा है, इसलिए उसको प्रारब्ध बताया। क्या बताया? सादी भाषा में बोलो तो प्रारब्ध का अर्थ है संयोगाधीन। संयोगाधीन, ठीक है? हाँ, એટલે પ્રકૃતિ આખી સંયોગાધીન છે, બરોબર ને સાહેબ? हाँ जी, हाँ, समझ આવી, बरोबर। जय सच्चिदानंद साहेब। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, शैलेश जी, अभी एक मिनट। ओके, शैलेश जी, अभी सामायिक काम चल रहा है लास्ट 2 दिन, उसमें वो 3 सेपरेशन प्रेयर है दादाजी का। उसके साथ सामायिक करने का है कि कोई जो याद आए किसी का, आदमी का और कोई इंसिडेंट का, और जो मिस्टेक दिखा है उसको प्रतिक्रम करने का। तो उसके बारे में आप जरा बताइए कि क्या कर सकता है, क्या नहीं करता है, क्यों होता है ये सब। जी, तो सामायिक की जो भी हम प्रार्थना या विधि करते हैं तो क्या होता है? तो बोले दादाजी हमारे साथ हाजिर हो जाते हैं, अंदर से बुद्धि गैरहाजिर हो जाती है, मैं शुद्धात्मा में बैठ जाता हूँ, और शुद्धात्मा का ज्ञान दर्शन प्रकाश हमारे फाइल 1 के प्रदेशों पर जहाँ जो भी प्रार्थना की उसके पर वो दिखाई देता है, और वो परमाणु सब शुद्ध होके, हल्के होके, निर्बोझ होके, साफ होके चले जाते हैं। यहाँ बात हुई जो जो याद आता है। याद क्या चीज आती है? तो बोले जो चीज नॉर्मालिटी में चली गई, जहाँ कुछ अतिक्रमण नहीं हुआ, तो वो याद नहीं आएगी। ऊर्ध्व गमन ते स्मृति रहित आत्मस्वस्थ स्वयमेव तन्मयता सह ज्ञान मा निर्तन्मय स्वकमण। मैंने यदि मैं शुद्धात्मा रहा, यदि शैलेश सहज रूप से डिस्चार्ज हुआ, तो वो अवस्था वापिस याद नहीं आएगी और मेरा ऊर्ध्व गमन स्मृति रहित ऊर्ध्व गमन होगा। मगर जहां पर कुछ अतिक्रमण हुआ, विषमता हुई, जो साफ करने का बाकी रह गया, तो मैं जब शांति से प्रार्थना करके बैठूंगा तो मेरे चित्त प्रदेश में वो हाजिर हो जाएगा कि यहाँ ये गलती हुई, यहाँ ये ठीक नहीं हुआ, यहाँ इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तो वो आएंगे। तो दादाजी ने बताया कि स्मृति हमें क्या बोलती है? यादगिरी, वॉश मी आउट, क्लियर मी आउट। तो उसको वो हमें साफ करने का स्कोप देती है कि यहाँ गलती है, विज्ञान लगा के, 5 आज्ञा शुद्ध उपयोग लगा के प्रतिक्रमण करके उससे मुक्त हो जाइए। दूसरा, स्मृति ये राग द्वेष के अधीन है। जहां मुझे विषमता या तो अभाव है या तो अटैचमेंट है, वो मेरी चित्त के स्मृति पट पर आएगी, तो उसे मुझे देख के साफ करना है। जहां मुझे अटैचमेंट या एवर्जन नहीं है, गाड़ी में गया, बस में गया, रास्ते पर से गुजरा, जहां किसी के साथ ऐसा नहीं था, वो मेरे चित्त में नहीं आएंगे। मगर जिनके साथ मेरा कुछ भी राग या द्वेष वाला जो भी कुछ व्यवहार की फाइल है,
तो मैं बैठूंगा तो मुझे याद आएगी कि हाँ अक्षय भाई ने ऐसा किया, रजनी भाई ने, दादा ने ऐसा किया, ये अच्छा है, ये बुरा, व्हाटएवर। सो ये स्मृति है, तो स्मृति इटसेल्फ प्रतिक्रमण के लिए हमें प्रेरित करती है कि यहाँ शुद्धिकरण की जरूरत है। वो अतिक्रमण के रूप में हो, विषमता के रूप में हो, या किन व्यक्तियों के साथ हमारा जो व्यवहार है, या तो अभाव का, या तो थोड़े अटैचमेंट का, डिस्चार्ज में, वो भी स्मृति में आएंगी। मैंने जहां जहां भी कुछ साबु लगाने की जरूरत है शुद्ध उपयोग के और प्रतिक्रमण के, वो हमारी स्मृति में आते रहेंगे, या चित्त के वो उसके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कई लोग बोलते हैं मैं विधि करने बैठता हूँ उसी समय ये सब होता है। हाँ, क्योंकि विधि करने के लिए चित्त, शुद्ध चित्त को एकाग्र किया तो वो स्कोप देता है ये आत्मा के प्रदेश, उद्गल के प्रदेशों की गलतियों को देखने का। तो इस हिसाब से हम करते हैं कि जहां जहां भी हमें सामने से चित्त आई, मैंने चिपकी है, वो वहां चोट है, वो मुक्त नहीं हो गए उसका, या राग का, या द्वेष का, व्यक्तियों का, या बनाव परिस्थितियों का, जो भी है, हम बैठ के प्रतिक्रमण कर ले। बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो स्मृति में आती है वो साफ करने के आते हैं, वो वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी आपका मेमोरी, आई हैव टू गो बैक इन योर मेमोरी। अभी दादा भगवान की जन्म जयंती जी, अद्भुत 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 उजवनी हुई। हाँ, तो सबको अभी भी भूल नहीं पाते हैं। तो जी। आपका वो समरी और ऑब्जर्वेशन जब प्लीज बताइए। ये अभी जो हुई उसकी बात करें ना। हाँ, वो अभी हाँ, भूल नहीं हाँ, पाता है अभी भी। हाँ, वो उसे स्मृति नहीं कहते हैं, वो तो दर्शन। नहीं, ये सेपरेट टॉपिक, जस्ट वांट टू गेट योर ओवरव्यू। सॉरी। तो वो भूल नहीं पाते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन और समरी तो क्या है रजनी दादा जी, कि हमने एक चीज देखा कि दादाजी का योग बल और कृपा ऐसी काम करती है कि उस दिनों में कुछ अद्भुत ही वातावरण और हमारे अंतर परिणाम बाह्य सब कुछ बदल के अद्भुत हो जाता है। जैसे दादाजी हमारे साथ हाजिर ही है और होते ही है। दादाजी अकेले नहीं, देव देवियों की भी हाजिरी सूक्ष्म में महसूस होती है। अभी महात्मा लोगों की परिणति और निश्चय और कैसे काम करता है, तो सबका निश्चय है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, मन वचन कैसे भिन्न हूँ। ये मन वचन का या अपने उत्कृष्ट भाव परिणाम और विनय से अभेद भाव और लघुतम भाव और अभेद दृष्टि से इसमें उत्कृष्ट हर एक सेकंड में लाभ ले, और मैं शुद्धात्मा हूँ देखू जानो, तो शुद्ध उपयोग पूर्वक ये जो पूरा चलता है। और दूसरा फायदा ये होता है, इसमें बहुत सारी चीज बनती है। जैसे मैंने बताया दादा की हाजिरी, उनकी कृपा, उनका योग बल। हमने कई बार देखा है कि अगले 1-2 दिन तक एटमॉस्फेयर अलग होता है, उस दिन का एटमॉस्फेयर ही कुछ इतना चेंज हो जाता है कि आनंद 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 आनंद। और वो आनंद इमोशनल नहीं मगर स्थिर करने वाला, शुद्धात्मा की लक्ष्य के साथ उपयोग के साथ का आनंद। दैवी शक्ति की बात मैंने की। तीसरी चीज हर एक महात्मा को होता है कि मेरे सेकंड शुद्ध उपयोग मैंने, मैं शुद्धात्मा रह के शुद्धात्मा को देखूं। उसमें एक संघ बल भी बहुत काम करता है। दादाजी ने मेरे से ही बात किया था ज्ञान लेने के कुछ ही दिनों में कि यदि एक आदमी पुरुषार्थ करता है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 1 का लाभ मिलता है। 2 साथ में मिलके करते तो दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 का लाभ मिलता है। 4 हो गए तो सबको 4 गुना, तो 500 होते हैं तो सबको 500 गुना लाभ। तो दादाजी ने खुद ने बताया कि महावीर भी संघ इकट्ठा करते थे और हम भी संघ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि संघ बल से बिना मेहनत बहुत अद्भुत लाभ होता है। दूसरा चीज दादाजी ने उस दिनों में ये भी बताया था, शुरू के दिनों में, कि आप छोटे सत्संग में यदि ना आ पाओ तो कोई बात नहीं, मगर ये 3 दिन है, गुरु पूर्णिमा, दादा भगवान का जन्मदिन और हो सके तो नया साल का दिन, उस समय जरूर आना। उस समय में एक दिन में 6-12 महीने की कमाई हो जाएगी। तो ये सब वैज्ञानिक जो चीजें हैं, तो उस दिन संघ बल, शुद्ध उपयोग का वातावरण, दादा की हाजिरी, दैवी कृपा, सबका उपयोग इतना अद्भुत होता है। तो पूरा वातावरण और कंटिन्यूटी, ये
समय तो क्या कि लगभग 3.5-4 दिन तक सबको एक समान सतत योग रहा। तो नियम है कि 48-50 मिनट से ऊपर जब योग रहता है तब उसकी इफेक्ट स्थिरता होनी चालू हो जाती है। तो 3.5-4 दिन का लोगों को लाभ मिला। तो वो बहुत एक अद्भुत सबको खुद की स्थिरता का, आनंद का और इसका सबका लाभ मिला। और उस दौरान अलग अलग प्रयोग भी हुए, भिन्न भिन्न प्रयोग, और सबके चारों ओर से। तो ये सब मिला के ये एक अद्भुत प्रसंग हो गया। या तो वो वातावरण और वितराग मार्ग का ये संग बल के साथ का, दादाजी की हाजिरी के साथ का प्रयोग। वेरी गुड। और अदर शैलेश जी, वंडर वॉज के हम तो उधर नहीं था, पर ऐसे लगता है तो हम उधर ही थे ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। नहीं, बिल्कुल रजनी दादाजी, वो तो बात है कि आप जहां से भी जुड़े, जैसे भी जुड़े, चित आपका उसमें था तो आपको वो प्रत्यक्षता का लाभ देके जाता है, मिलता है। इम्पोर्टेंट चित उधर था। चित, हाँ, उपयोग जुड़ा था ना आपका। भले आप जहाँ बैठे थे मगर तो आप वही थे, भाव से। भाव से भी वही थे, चित की हाजिरी से, मैंने उपयोग से भी वही थे। वो लाभ आपको मिलता है, जरूर से मिलता है। नाउ आई विल गो टू दैट। आप बता रहे थे किसी उसको स्मृति नहीं बोलता है, अभी भी याद आता है, तो वो जरा एक्सप्लेन करो। हाँ, वो स्मृति इसलिए नहीं है कि वो चोट वाली बात नहीं है, वो हमारा आत्मोल्लास बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आत्मोल्लास का वातावरण है। तो वो एक दूसरी चीज बताता हूँ। कविराज ने एक जगह पे लिखा है, जेनी मात्र स्मृति थी ज सबर थाय आत्मा, तेने जोतावे त चरण चुमी लईसु। वहां स्मृति का जो उपयोग किया वो अलग ढंग से किया कि वो स्मृति मात्र से मेरा हृदय, मैंने शुद्धात्मा पुलकित हो जाता है। तो यहाँ स्मृति मैंने दर्शन के रूप में, दादाजी को भी कई बार पूछा गया, दादाजी को कुछ भी बात करे तो दादाजी बोले हमारे दर्शन में सब कुछ दिखता है। वो यादगिरी नहीं है, चोट नहीं है, वहां पर टक नहीं होते हैं, मगर वो आत्मा के दर्शन के प्रदेशों से वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो आनंद उल्लास आपने जो बात की, जाता ही नहीं है, वो शुद्ध उपयोग का परिणाम है। शुद्ध उपयोग के साथ की जो भक्ति हुई। और एक नियम है कि अपने शुद्धात्मा का आनंद उतना उत्कृष्ट से जो अनुभव करते हैं तो उसका स्वाद जाता नहीं, और वहां बार बार वो लेवल पर अनुभव करने का, उसके लिए पुरुषार्थ करने का हमारा अंतर से आता रहता है। बहुत वंडरफुल। ओके, अब अभी अपना टाइम हो गया, तो 3 मंत्र बोला है। वैशाली बेन प्लीज फॉलो। जरूर से। तो ये सब वितराग के अद्भुत विज्ञान प्रयोग और वितराग का अद्भुत विज्ञान, ये तो बहुत, जितना हम समझे नहीं समझे तो भी उसमें जितना रहे, जहां से भी हम ज्वाइंट होते हैं, वो बहुत अद्भुत लाभ देता है। चाहिए वो तो कुछ तो शब्द से भी समझा नहीं सकते, ऐसी चीजें होती है। क्योंकि उसमें जो हमारे पुद्गल के बोझ हल्के हो जाते हैं, हमारे आत्मा के प्रदेश जो खुले होते हैं, और भाव की उत्कृष्टता, बहुत सारी चीजें बनती है। रजनी दादाजी वो तो ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। चलो, एक मिनट। ममता बहन, आपको कुछ बोलने का है, कहने का है? हाँ, जय सच्चिदानंद रजनी दादा, जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद जी। जब अभी जो विंटर सीजन चल रहा है ना, तो मेरा साइनस का प्रॉब्लम है और वीजिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं सोचती हूँ भाई सुबह जल्दी उठ के सत्साधन कर लूं। जो मेरा बच्चा छोटा है तो जब ये सो रहा है तो मैं काम कर लूं, पर मुझसे हो नहीं रहा है। मैं जब उठती हूँ तो ठंडी हवा लगते ही मुझे कोल्ड हो जाता है, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। वीजिंग पंप लेना पड़ता है, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। और उसमें मैं कुछ काम भी नहीं कर, जो सोचती हूँ भाई आज ये सब कर ले, तो वो हो ही नहीं रहा, और 2 दिन डिले होते ही जाता है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? आप तो आपको डॉक्टर के पास से पूछा है कि आप तो वो लोग को पूछा है? 2 in 1 है ना दादा। नहीं, कोई बात नहीं। अभी एक काम करते हैं कि हम 1 to 1 बात कर लेंगे, और ये सबका समय को सम्मान देते हुए मैं जरूर से बात करूंगा आपसे। आप इनसे या किसी से मेरा नंबर ले लेना, व्हाट्सएप नंबर 9913146547 है।
तो सबको अभी सबके समय को हम सम्मान रजनी दादा उनको वोट ओके ठीक है, तो आप त्रिमंत्र बोला है, ममता जरूर। बहन प्लीज फॉलो करो। हाँ नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंतानम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वायरियानम नमो वज्रयानम नमो वस्यायानम नमो लोय सवसाहुनम नमो लोहे सव्व साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपनासनो सव्व पावपनाशनो मंगलानंच सौवेसिम मंगलानंच सव्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः